Hello, good morning, good afternoon, and good evening to everybody. Again, I have come with a new chapter of class 10, that is Nelson Mandela of First Flight's book. Student, before to continue the chapter, I have a request to everybody. Those who have not subscribed to my channel 8, go and please subscribe it. Click the bell icon. I hope you will get the next uploads very soon. तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि सभी को हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा और आप चैप्टर्स को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आइए हम लोग आज नए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। स्टूडेंट, दिस इज़ द ऑटोबायोग्राफी। तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, चैप्टर्स को हमने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम यूजिंग द वेरी सिंपल वर्ड्स ऑल्सो, ताकि हर बच्चे को अच्छे से समझ में आए। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि इस चैप्टर के जो दो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। नंबर 1, we have to study about the apartheid system which was prevailed in South Africa, जहाँ पे दो तरह के लोग थे, वाइटिस एंड ब्लैकिस लोग। तो पूरा साउथ अफ्रीका जो रूल हो रहा था वो वाइटिस सुप्रीमेसी के अंडर में था। और दूसरा एस्पेक्ट हमें ये पढ़ना है कि हाउ साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस इन how South Africa got independence from the whitist supremacy. This chapter is informational as well as inspirational for each and every students. Okay. So first of all we will come to know कि in this chapter आखिर कौन सी बेसिक चीज़ है जो हर बच्चों को पढ़ना है। That is the inauguration ceremony that was held on 10th May 1994. So I'm going to start the chapter from the beginning. There was a racial discrimination in South Africa. Racial discrimination, do you know? That is the discrimination on the basis of skin color. Apartheid is the political system that separates people according to the racial discrimination. This is the extract taken from the Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Why the chapter name is Long Walk to Freedom? That is very easy to understand कि freedom is not very easy thing. To achieve freedom, to achieve the own constitution, there is a series of war we have to fight, we have to sacrifice, then we will get the achievement of freedom. This is the extract. Already I am telling कि this is the autobiography self written by Nelson Mandela. उन्होंने इस समय अपने जीवन की हर एक बातों को काफ़ी बखूबी रूप से बखान किया है कि कैसे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया और फाइनली साउथ अफ्रीका को अपना एक ओन कॉन्स्टिट्यूशन दिलाने में अहम भूमिका निभाई। This is an article. As you start the chapter, the first paragraph you are just going to study, so there you will find that this is an article only, okay, on which the date was written 10th May 1994, published through BBC newspaper. So in that article, what was the very important thing कि Nelson Mandela became the first black president of South Africa under the whitist supremacy, under the British. आखिर ये ब्रिटिश वाइटिस का क्या कनेक्शन है? स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका में जो ऑलरेडी नेटिव लोग थे, कुछ खास लोग वाइटिस थे जिनका बहुत ज़्यादा दबदबा था,
वो वाइटिस रूल इतना ज़्यादा हार्श एंड हार्डशिप के साथ बढ़ा हुआ था कि ब्लैकिश लोग को दे वर नॉट अलाउड टू कास्ट द वोट, दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, दे वर नॉट अलाउड टू मूव इन टू टेम्पल्स. तो दैट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द ब्लैकिश पीपल टू सर्वाइव देयर हैप्पली. So the very important thing of this chapter is that Nelson Mandela was the young-blooded person. He formulated ANC party, that was African National Congress party, and there was an election held in 1994 in which ANC party won successfully. मतलब कि 250 सीट्स उन्होंने अचीव किया आउट ऑफ 400 और इसकी पार्टी सत्ता में आ गई. तो एज ही बिकेम द first black president of South Africa, he organized the very grand inauguration ceremony, that we can say inauguration party, in which millions of the dignitaries came from the different 40 countries. मतलब 40 देशों के बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज पूरी दुनिया से लोग देखने आए इस इनाग्रेशन सेरेमनी को. और इस सेरेमनी का जो मेन अट्रैक्शन था स्टूडेंट, दैट वाज द स्पीच गिवन बाय नेल्सन मंडेला. दैट वाज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्पीच. वो उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, उनके हर एक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ वो स्पीच था जो आज हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ने जा रहे हैं. और उन्होंने इस स्पीच के थ्रू पूरे दुनिया को एड्रेस किया रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका, कि हमारे साउथ अफ्रीका में नो बडी विल बी ऑप्रेस्ड नाउ. मतलब कि 2 सेंचुरीज लगभग साउथ अफ्रीकन लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस किए, है ना. ऑपरेशन वी कैन से इतने सारे प्रॉब्लम्स को से झेलने के बाद अब ये प्रॉमिस कर रहे हैं नेल्सन मंडेला अपने सिटीजन्स को कि आज के बाद हमारे देश में किसी को भी प्रॉब्लम्स नहीं झेलने होंगे. तो इस पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा था स्टूडेंट, दैट वाज द स्पीच, दैट वाज द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस इनाग्रेशन सेरेमनी. और आपको बता दूं कि इसे देखने के लिए दुनिया के विभिन्न जगहों से विभिन्न तरह के डिग्निटरीज आए और सब लोग, इवन के सिटीजन्स ऑल्सो इस इनाग्रेशन सेरेमनी को एंजॉय किए. दे सैंग देयर, दे डांस्ड ऑल्सो. इट मीन्स कि देयर वाज द फैसिलिटीज़ ऑफ एवरीथिंग. तो शुरुआत कैसे होती है? 10th मई का वो दिन होता है. द मॉर्निंग वॉज वेरी चार्मिंग बिकॉज दैट वॉज द सेलिब्रेशन डे, दैट वॉज द वेरी ग्रैंड ओपनिंग ऑफ दैट इनाग्रेशन सेरेमनी. तो नाउ इट इज़ द क्वेश्चन कि वेयर इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ अफ्रीका. लेट मी टेल यू कि दैट वॉज द सैंडस्टोन एम्फीथिएटर विच इज़ सिचुएटेड इन प्रिटोरिया, है ना. सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में ये ग्रैंड ओकेजन ऑर्गेनाइज किया गया था. एंड इसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट वाज अंडर द रेनबो अम्ब्रेला. नो, इस इनाग्रेशन सेरेमनी में नेल्सन मंडेला अकेले नहीं शामिल हुए, वो अपनी बेटी के साथ भी आए, जिस बेटी का नाम था जेनानी, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनाउंसमेंट स्टार्टेड एंड Mr. De Klerk was appointed. He was declared as the second deputy president of South Africa. Then the first deputy president of South Africa was declared Thabo Mbeki, and the last turn came for the Nelson Mandela. As the turn comes for the Nelson Mandela, he arrived at the stage. And on the podium, he addressed every citizens who were available, who were participating that inauguration ceremony. He took the place. He will do the work with full devotion. He will pay the liberty. He will pay freedom for each and every citizens of South Africa. He plays to work for welfare only. No. So in the place, lot many his works were mentioned, and he was taking the place to admire, to satisfy each citizens of the South Africa. He told to worldwide to show the
to solve the problems of each and every citizens of South Africa. He promised to guarantee the liberty, he promised to guarantee the peace, he promised to guarantee the rights, all the human rights, fundamental rights to each and every citizens. His main focus was on the proud of humanity, that the people will work, even I will also work for the humanity. Nobody will be suffering from the poverty here. Everyone will enjoy the sovereignty. No, so he was thanking also to each and everyone who were participating in the revolution of South Africa. So at last he was telling that this is the victory of everything. Victory of everything means what, a student? He was just telling that this is all happened because of your supports. Here I am standing today, so this is all of your cooperation that today South Africa got its own constitution. Now it will be called South Africa Democratic Republic country. No. So victory of everything means now it is clear कि victory on peace, victory of liberty, victory of own constitution, है ना. Finally he was telling that कि now from today onward I am just going to promise everything, that कि now I am going to abolish here dishonesty, abolishing the gender discrimination, I am going to abolish the racial discrimination. No, तो उनका जो लास्ट स्टेटमेंट ये भी रहा कि never never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression by one another. कि आज तक का जो experience था हमने, we have made the very bad experience कि the another people were ruling and the white supremacy was out of the control. So now from today onward never 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 means कि आज के बाद कभी भी हमारे साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स कभी भी ऑपरेशन का शिकार नहीं होंगे. नहीं, यहाँ के किसी के लोग को सताए जाने की खबर कभी नहीं मिलेगी. एवरीवन विल एंजॉय द लिबर्टी, एवरीवन विल एंजॉय द इक्वल राइट्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन. सारे लोग इक्वल होंगे एंड दे विल एंजॉय द ऑल द गिवन राइट्स. तो नाउ इट इज़ क्लियर स्टूडेंट, द हेडिंग ऑफ द चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. मतलब फ्रीडम इतनी आसानी से नहीं मिलती है. देयर इज़ अ सर्टेन सीरीज ऑफ द फाइट्स, by after that we are getting the freedom. So he was telling that कि freedom to be continued up to my last breath, है ना. And God bless my South Africa. तो हम लोग कह सकते हैं कि the government which he formulated that was the non-racial government. जो आज तक वहाँ पे white supremacy था उसको abolish करके नेल्सन मंडेला ने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी फाइट करके उन्होंने नॉन रेशियल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया था. तो अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखना है. द चैप्टर इज़ टू बी कंटिन्यूड फ्रॉम हियर ऑल्सो कि ही वॉज, सबसे पहले हमें देखना होगा कि आखिर नेल्सन मंडेला थे कौन, जो इतनी बड़ी अचीवमेंट था उनका कि बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना. कि अफ्रीकन सॉइल पे आज पहली बार एक ब्लैक प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ. तो नेल्सन मंडेला वॉज द वेरी ब्रेव हार्टेड पर्सन, ही वॉज द यंग ब्लडेड पर्सन, नो, ही वॉज द लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. तो उनको ये प्रमोट किसने किया, हाउ ही प्रोमोटेड किया टू फाइट अगेंस्ट वाइट सुप्रीमेसी. उन्होंने देखा, बचपन से ही देखा कि यहाँ के लोगों का जो राइट्स है वो सीज्ड हो चुका है, ब्लैकिश लोग का जीना बिल्कुल हराम हो चुका है, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द वाइटिश सुप्रीमेसी. तो ये सारी चीज़ों को हर कोई देखता था, बट नेल्सन मंडेला वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एट ऑल इट. एंड ही फाउट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम. उनको ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता था कि जो गॉड हम सबको बनाया है, वी ऑल आर इक्वल बिफोर द गॉड, तो वाई द पीपल ऑफ वाइट सुप्रीमेसी दे आर हरासिंग, दे आर टॉर्चरिंग द ब्लैकिश पीपल, है ना. तो ये सिर्फ अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करने की वजह से वाइट सुप्रीमेसी लोगों ने इनको कॉन्स्पिरेसी का, षड्यंत्र का बहुत बड़ा क्रिमिनल माना और वाइट सुप्रीमेसी का रूल्स तोड़ने की बहुत सारे केसेस इन पे लगाया गया. और 30 years ही वॉज थ्रोन इन द 30-year इम्प्रिजमेंट ऑन द रॉबिन आइलैंड. आज़ादी इतनी आसानी से उन्होंने नहीं दिलाया, उन्हें भी बहुत मशक्क़त के साथ 30 अपनी ज़िंदगी का सबसे गोल्डन ड्यूरेशन 30 years ही स्पेंट इन द जेल. एट लास्ट
इस तरह से रिवॉल्यूशन चलता रहा, कई साल बीत गए, है ना। व्हेन ही कम बैक फ्रॉम द जेल अगेन स्टार्टेड द रिवॉल्यूशन विद द फुल स्टेमिना एंड फुल एनर्जी। रिवॉल्यूशन चलता रहा। एट लास्ट 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड हुआ। वन डेमोक्रेटिक इलेक्शन वॉज हेल्ड एंड इन दैट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉन द इलेक्शन। आउट ऑफ 400 सीट इसने अचीव किया 252 सीट्स। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पहली बार सत्ता में आई और उसके जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को बनाया गया। तो कह सकते हैं कि स्टूडेंट दैट वाज द इनॉग्रेशन सेरेमनी, इट वाज द वर्ल्ड वाइड। हम लोग कह सकते हैं कि पूरी दुनिया देख रही थी कि साउथ अफ्रीका ने पहली बार विजयी हासिल किया और कैसे इनॉग्रेशन सेरेमनी को एंजॉय कर रहे थे सारे लोग। इट वाज द इंटरनेशनल गैदरिंग एवर, मतलब आज पहली बार इतिहास, साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी गैदरिंग थी। दुनिया के हर कोने से विभिन्न तरह के डिग्निटरीज आए, है ना। इस आलिशान ग्रैंड पार्टी को देखा उन्होंने, वेयर वाइट सुप्रीमेसी वॉज एबॉलिश्ड। बिकॉज पहले क्या था कि ब्लैकिश वेयर नॉट ट्रीटेड इक्वली, उनको वो सारे राइट्स नहीं दिए गए थे जो वाइटिश लोगों के पास था। तो the main attraction of that inauguration ceremony was the speech, and the second one was the African jets and helicopters, those who were making the patterns in the open sky. That was a marvelous, मतलब देखते ही बनता था। उन लोगों ने जो आर्मी पावर को दिखाया, है ना, that was of course the praise, it was praiseworthy. तो that was the pattern made by South African jets and helicopters, जो पैटर्न ओपन स्काई में बना रहे थे, है ना। दैट वाज द व्हाट, दैट वाज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लॉयल एंड ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस ऑफ द साउथ अफ्रीकन आर्मीज एयरफोर्स। तो अब सवाल ये है कि आखिर कौन सी चीज़ उनको मोटिवेट किया कि हमें साउथ अफ्रीका के लिए लड़ना है, इस देश को आज़ादी दिलाना है, हमारा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना, वी हैव टू एबॉलिश वाइटिश सुप्रीमेसी। तो ये ऑब्लिगेशन था स्टूडेंट्स की वहाँ पे। हम सभी को पता है कि इंसान के पास, एक ह्यूमन के पास दो ऑब्लिगेशन होते हैं। देयर आर टू ऑब्लिगेशंस फॉर द ह्यूमन बीइंग, दैट टू सर्टेन ऑब्लिगेशंस। नंबर वन दैट इज़ फॉर द फैमिली एंड नंबर टू इज़ फॉर द नेशन। और उन्होंने बचपन से क्या देखा, बचपन में उनकी फ्रीडम की सोच अलग थी। जैसे कि बचपन में वो सोचते थे कि हमारी आज़ादी इतना ही भर है कि हम नदी में नहाएं, है ना, क्रिकेट खेलें। तो फिर वो बड़े हुए तो उनकी सोच बदल गई, है ना। द विज़न ऑफ द फ्रीडम वॉज चेंज्ड कि नो, देयर आर टू सर्टेन ऑब्लिगेशन, वन पर्सन मस्ट हैव टू फॉलो बोथ ऑब्लिगेशन। उन्होंने क्या देखा कि वाइटिश सुप्रीमेसी के अंडर में ये दोनों ऑब्लिगेशन इंसान पूरा नहीं कर सकता था। अगर वो इंसान चाहे कि फर्स्ट ऑब्लिगेशन देश के लिए जिए तब भी प्रॉब्लम था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। और अगर फैमिली के लिए भी जी रहा है कोई इंसान तब भी प्रॉब्लम था वाइटिश लोगों को। इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें नेल्सन मंडेला से नहीं देखा गया। और ऑफ कोर्स देयर महात्मा गांधी वाज आल्सो देयर, ही वाज देयर फॉर द डूइंग द बैरिस्ट्री क्लास। तो ही प्रमोटेड नेल्सन मंडेला टू फाइट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। तो ओवरऑल this is the great achievement, this is the great story made by Nelson Mandela. So I hope a student you have understood the chapter properly. That's it. Thank you everybody.